Yes, beta dear students, welcome to the P5 stroke. And if you like my lecture, like and subscribe my channel. Okay. In the previous lectures, we are discussing about the concentration of solution. Now we go continue with this lecture. Continue with this lecture. Continue with this lecture. That is the next concept is molarity of the solution, and the molarity of solution will be represented by capital M, and according to the definition, sometimes in CBSE the definition of molarity come as well in the Haryana board. You should know about the definition of molarity, that what is molarity. Molarity is the number of moles of solute per unit volume of the solution. That is called the molarity, number of moles of solute per unit volume of the solution. It is represented by capital M, and the mathematically it will represented by molarity is equal to that NB. The B word denote the solute divided by volume. If it is in milliliter, then this molarity will be multiplied by 1000, and if that volume is taken in liter, then this equation be write in this way. In which that NB is number of moles of solute and V is the volume of solution, and M is molarity, and the definition is number of moles of solute per unit volume of the solution. This formula is very important because in the lots of cases we take the concentration in the form of molarity. In maximum cases we represent the M by C, and that C represent the concentration of the solution, and the molarity will be represented by C in some cases. This formula is important because मैंने आपको पहले बताया है कि मैक्सिमम केसेस में, बहुत सारे केसेस में हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में किसका यूज़ करते हैं, मोलैरिटी का यूज़ करते हैं, और किसी भी सोल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है दैट इज इक्वल टू द NB डिवाइड बाय V. NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट NB is the number of moles of solute. To find the number of moles of solute, NB, given as WB divided by MB. That WB is the given mass of solute, and that MB will the molecular mass of solute. In this way we can find the number of moles of solute.
WB divided by MB. W is the given mass and MB is the molecular mass of the solute. We will find the molarity, or we will consider an example for the molarity. For example, numerical number first in the case of molarity, 10 gram of ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 डिजोल्व इन 200 milliliter of water. Okay, calculate molarity. आपको मोलारिटी जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई हो या हरियाणा बोर्ड, हर केस में आप लोगों को जो न्यूमेरिकल मिलता है वो पार्ट्स में बटा हुआ होता है. 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल अगर आपके पास है तो वो हाफ ऑफ मार्क्स में डिवाइड होता है. तो इसलिए जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको हर एक चीज़ को क्या करना है, राइट करना है, ताकि आपको मार्क्स मिल सके. तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या क्या चीज़ आपको गिवन है वो आपने फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले आपको गिवन है WB यानी कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज 10 ग्राम. गिवन मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट. तो आपको इसका फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6. हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 दा 72. हाइड्रोजन का क्या होता है 1, 12 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 12. और ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 6 दा क्या हो गया 96. तो ये हम करेंगे टोटल 6 + 2 8 + 2 क्या हो गया 10, 9 1 10 11 18 180 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या इसे आप ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट. वॉल्यूम आपको दे रखा है 200 मिलीलीटर. और मोलारिटी जो है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ये जब आप डाटा आप राइट करेंगे तो इस डाटा के आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स. बहुत से स्टूडेंट, मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी बताई थी कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ को राइट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं. तो आपको जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उस चीज़ को आपने ज़रूर राइट करना है. उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000. This will give you the half marks. That formula will give you half marks. Then जो वैल्यू है वो आप पुट करेंगे. मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम आपको दे रखा है 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000. अब हमने NB फाइंड आउट करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने आपको बताया था कि किसके बराबर होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि WB डिवाइड बाय क्या है MB. यानी आपको गिवन मास तो क्या दे रखा है 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला था 180.
तो ये वैल्यू आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू, यू कैन से दैट 10/180 इंटू में 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, ये हमने कट कर दिया 5 और हमारे पास आ गया 50 डिवाइड बाय 180, ये कट हो गया, हमारे पास रह गया 5/18। ठीक है, तो 0.18 टू द 36 बच गया हमारे पास 14 और 140, तो 140 जाएगा 7 पे 0.27, या तो आप इसको लिख दो मोलर, बड़े एम से रिप्रेजेंट कर दो, या आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल्स पर मिलीलीटर, या आप लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर। दैट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अगर हमारे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो मोल्स पर मिलीलीटर आएगा, और अगर लीटर में होगा तो क्या होगा, मोल्स पर लीटर। एंड यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट बाय एम, लार्ज एम, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बिगेस्ट थिंग इज द NB, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। Okay, so in this way we can find the molarity of the solution. But the molarity of the solution is not a suitable method to find the concentration of a solution. भी किसी भी solution की concentration आप अगर find out करना चाहते हैं तो molarity एक suitable method नहीं है उसको find out करने का, क्योंकि मोलैरिटी इज हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। टेम्परेचर का हल्का सा चेंज भी मोलैरिटी में क्या ला देता है, बदलाव ला देता है। क्योंकि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने किया है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है ये। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि +1 में हमने एक लॉ किया था, चार्ल्स लॉ, और उस चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चार्ल्स लॉ आप लोगों ने +1 में किया है इन द यूनिट नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, कई सारे लॉज आए थे। तो उसमें एक लॉ था हमारे पास चार्ल्स लॉ, तो उसमें वॉल्यूम क्या था, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो चेंज सिर्फ किस में आता है, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में बदलाव के साथ चेंज किस में आ जाता है, मोलैरिटी में आ जाता है। यानी टेम्परेचर जो है वो मोलैरिटी पर क्या डालता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मोलैरिटी इज़ हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपके पास आ सकता है, कि जैसे आपको वो क्वेश्चन हो सकता है कि आउट ऑफ दीज कंसंट्रेशन टर्म्स विच टर्म्स इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ऑप्शंस आपके पास मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज कोई भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से ध्यान रखनी है कि मोलैरिटी इज हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। That's why that molarity is not a suitable method, a perfect method to find the concentration of solution. If you find the concentration of solution by molarity, you should take the temperature as a constant thing. You maintain the temperature as a constant thing. Whenever you do the numerical, there will be always you see that the temperature is constant. लिखा होगा at the temperature 25 degrees Celsius, at the temperature 20 degrees Celsius, the temperature will be maintained at fixed value. Then we can find the molarity of the solution. If the temperature is changeable, we can't find the molarity, we can't find the concentration by molarity, because molarity is highly affected by temperature. Okay, so this method is usable but not in the case of changeable temperature, because molarity is affected by temperature. Okay beta, then we will meet
in the next lecture. Bye bye. Have a nice day.